پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ کچھ ممالک کے میڈیا نے غلط رپورٹنگ کی۔ حملہ آور نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا۔ نام کی بنیاد پر پاکستان پر الزام تراشی کی کوئی منطق نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا کہ بھارتی چینلز کے ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ بننے پر افسوس ہوا۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے سے پاکستان کو ہونے والے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈائی ساحل پر حملہ کرنے والے ملزم نوید اکرم پر فرد جرم عائد دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد کیے گئے۔ ہسپتال سے ویڈیو لنک کے ذریعے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نوید اکرم پولیس کی فائرنگ سے زخمی اور باپ ساجد ہلاک ہوا تھا۔ ہلاک ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد ساجد اکرم نے 6 بار بھارت کا دورہ کیا۔ اہل خانہ سے رابطہ رکھا۔ بونڈائی کے حملہ آور کو پکڑنے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ 60 سالہ شہری اور اس کی اہلیہ نے حملہ آور کو گرا کر بندوق چھینی۔ حملہ آور نے دوسری بندوق نکال کر دونوں کو گولی مار دی۔ باپ بیٹے کی فائرنگ سے 15 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ جائے وقوع پر تیسرے روز بھی شہریوں کی آمد، پھول رکھ کر ہمدردی کا اظہار۔ ایشین سیریز میں تیسرے ٹیسٹ سے قبل سڈنی ساحل حملے کے متاثرین کی یاد میں تقریب 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کھلاڑیوں کی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت۔ ایڈلیڈ میں پرچم سر نگوں، حملہ آوروں کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست، مودی کے لیے ڈراؤنا خواب۔ بھارت میں سیاسی اور سماجی رہنما اور عسکری قیادت عبرتناک شکست کا اعتراف کر چکی۔ گودی میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود مودی اپنی ہزیمت کو نہ چھپا سکا۔ پرتھوی راج نے کہا کہ جنگ کے پہلے ہی دن ہمیں پاکستان کے ہاتھوں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف آدھے گھنٹے کی فضائی لڑائی میں ہم پاکستان سے شکست کھا گئے۔ جنگ میں طیاروں کو گرا کر پوری بھارتی فضائیہ کو گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ مبینہ جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے خلاف آئینی عدالت میں اپیل دائر، موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت نہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی بینچ سے الگ ہونے کی استدعا، فل کورٹ کی تشکیل، جواب جمع کرانے کے لیے وقت دینے اور سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے فیصلے تک کیس ملتوی کرنے کی درخواست۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس نے مجھ سمیت دیگر ججز کی موجودگی میں ڈگری کیس ڈسکس کیا۔ چیف جسٹس نے زیر التوا مقدمہ ڈسکس کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ زیر التوا معاملے پر بات چیت کے بعد چیف جسٹس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کو توہین عدالت کی سزا کالعدم قرار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ عرفان نواز میمن کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ افسران کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی میں 3 MP آرڈر جاری کرنے پر سزا سنائی گئی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ قانون شہادت ترمیم بل 2025 کی منظوری۔ صدر آصف علی زرداری نے کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی توسیع کر دی۔ نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری۔ صدر نے دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظری ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ رواں سال 51,000 افراد کو آف لوڈ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق کے اجلاس میں ڈی جی FIA کی بریفنگ، بھیک مانگنے کے باعث پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا انکشاف۔ سعودی عرب نے رواں سال 24,000 افراد کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا۔ دبئی نے 6,000، آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا۔ ڈی جی FIA نے کہا کہ عمرے کے نام پر لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر قانونی افراد کو روکنے سے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 92 نمبر پر آئی۔ دبئی اور جرمنی نے پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا۔ بنگالی شہری پاکستان کے سیاحتی ویزے پر یورپ جاتے ہوئے گرفتار ہوا۔
कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुज़ाकराती कमेटी का मुशावरती इजलास जारी। कुछ देर बाद कस्टम हाउस में विफाक, पंजाब और सिंध की मुज़ाकराती कमेटियों से मुज़ाकरात होंगे। हड़ताल के बाद सामान की तरसील मुतासिर होने से कराची बंदरगाह पर कंटेनर्स का दबाव बढ़ गया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद अवाम कहते हैं हुकूमत को तमाम मुतालिबात तस्लीम करना होंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। लाहौर में हुकूमती कमेटी और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक। ट्रांसपोर्टर्स ने सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और ट्रैफिक अफसरान से अलग-अलग मुलाकात की। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ट्रैफिक जुर्मानों में 10% इजाफे की तजवीज़। ट्रैफिक कवानीन की 25 खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 3 से 8 हज़ार तक रखने और रूट परमिट की मुद्दत 1 साल की बजाय 3 साल करने की तजवीज़। रोड परमिट पर ट्रैफिक पुलिस के बजाय महकमा ट्रांसपोर्ट पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को जुर्माने करेगा। उधर डीजल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराया में 5% कमी कर दी। बानी पीटीआई को पंजाब से दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर है। अगर महाज ज़राई की सियासत करेंगे तो फिर कानून में हरकत आएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जमूम कोर गर्ल्स कैंपस और विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। बच्चियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दिए। फ्लू में मुब्तला बच्चियों के लिए डॉक्टर्स को तलब करके तिब्बी मुआयना करवाया गया। वज़ीर आला की बच्चियों की पसंद के मुताबिक मियारी खुराक की फराहमी की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा स्ट्रीट चिल्ड्रन की देखभाल हुकूमत की आईनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। यतीम और बेसहारा बच्चियों की तालीम, तरबियत और फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब की सब्जी मंडियों में इनकलाब। मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ। मंडियों में साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल। पंजाब के खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड आवेजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा कि पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। आवाम को हर सूरत पर सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फल और सब्जी मंडियों के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से स्मोक में नुमायां कमी हुई। स्मोक की रोकथाम के लिए हर फर्द को इनफरादी किरदार अदा करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इंसदाद स्मोक के हवाले से लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि स्मोक से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों का किरदार अहम रहा। स्मोक से निमटने के लिए गुज़िश्ता साल ही इक़दामात शुरू कर दिए थे। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद करने पड़ते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पीटीए सेक्रेटरी को 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। कहा कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बड़ा ख़तरा हैं। अवाम की जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम को महफूज, शफाफ और कानून के मुताबिक बनाने के लिए पुरआज़म है। गैर कानूनी अमल में मुलव्वस ट्रांसपोर्टर्स हों या एजेंट, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। हो गया। यूरोपीय यूनियन में लवारिस कम उम्र पनाह गुज़ीनों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सितंबर 2025 में 1775 बच्चों ने यूरोप में पनाह लेने के लिए दरख्वास्त दी। यूरोस्टेट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बच्चे एरिट्रिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, वेनेजुएला और मिस्र से आए। बच्चे जंग, गुर्बत और अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचने के लिए ख़तरनाक सफ़र पर मजबूर हुए। अमेरिका में 78,30,000 अफराद बेरोजगारी का शिकार। बेरोजगारी की शरह कोरोना के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अदद शुमार के मुताबिक नवंबर में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई, जो अक्टूबर 2021 के बाद बुलंद तरीन सतह है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और वफाकी हुकूमत के शोबों में मुलाजमतों में कमी देखी गई।
यूक्रेन से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम पर रूस में 4 नौजवान गिरफ्तार। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक नौजवान गैस और तेल की पाइपलाइंस को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। नौजवानों ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए एक मुबैना यूक्रेनी सिक्योरिटी एहलकार से राब्ता कायम किया। रकम के लिए ट्रांसपोर्ट और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने पर रजामंदी जाहिर की। जुर्म साबित होने की सूरत में मुल्ज़मान को 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। मेक्सिको में कांग्रेस इजलास के दौरान अरकान पार्लियामेंट गुत्थम गुत्था। खवातीन अरकान ने एक दूसरे के बाल नोचे, मुक्के मारे। शफाफियत का इदारा खत्म करने की बहस के दौरान अपोजिशन के अरकान डाइस पर आ गईं। हंगामा राई, लड़ाई की फुटेज वायरल हो गई। सऊदी अरब ने हज सीजन में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए नई इस्लाहात कर दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 150 से 1 लाख रियाल तक हो सकता है। ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाले के लिए इजाज़तनामा लाजमी करार दिया गया। ट्रांसपोर्ट के इजाज़तनामे की दरख्वास्तें शोबान से कबल ऑनलाइन जमा करवाना होंगी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। वाइट रिवर के किनारे सैलाबी हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। मशीनरी और नेशनल गार्ड के एहलकार रेत के थैलों से शगाफ को बंद करने में मसरूफ। तेज बारिशों से डैम टूटने का भी खदशा। अडयाला जेल के बाहर धरना देने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज किया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साजिद शेख से। साजिद, बताइए किन किन को नामजद किया गया? बैरूनी में दर्ज कर लिया गया और मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया है और इसमें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नूरीन न्याजी और कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा को नामजद किया गया। मजमूई तौर पर 35 नामजद और 400 मुलजमान जो हैं उनको दीगर मुलजमान को नामजद किया गया है और नईम पंजोता, ताबिश फारूक, तैयबा राजा भी इसमें नामजद हैं और नादिया खटक, हारून और राजा असद अब्बास, जफर गोंदल, शफकत अब्बास भी नामजद हैं और 14 मुलजमान मौका से गिरफ्तार किए गए हैं और इनको एटीसी रावलपिंडी में पेश कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि इस मुकदमे में बताया गया है कि पुलिस। ठीक है साजिद, आपका शुक्रिया।